Good morning, student. Yesterday we have learned chapter 2, that is the name of the chapter is device and software. In device in software chapter we have learned the following topic, that is what is input device, types of input device, example of input device, that is keyboard, and the function inside the keyboard is alphabet key, number key, special key, function key. Okay, that are the special type of function under the keyboard input device. Second input device is mouse. We know that types of mouse is 2-button mouse, 3-button mouse, optical scroll mouse, and we have learned other input device, that is joystick. It is also act as input device, and we also known as light pen, scanner, touch screen, microphone, trackball. These are the all input device example. So far we have learned it is in previous topic, and today we are going to learn component inside system unit. Okay, so let's begin. What are the component inside system units? That is the first component inside the system unit is called motherboard. What is motherboard? Motherboard is also known as main board or system board, is the circuit board to which all the other component of the computer are connected in some way. It also contain a large number of tiny electronics and other components, the video card, sound card, hard drive, main memory, etc. और प्लग इनटू द मदरबोर्ड वेरियस स्लॉट्स एंड कनेक्टर. मतलब ये हुआ कि आपका मदरबोर्ड ही मेन बोर्ड है, जिसको आप सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं. इस मदरबोर्ड में बहुत तरह के सर्किट्स बने होते हैं, कंपोनेंट्स बने होते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं. जैसे रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया. ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स आप मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मदरबोर्ड ही क्या हुआ, आगा आपका कंप्यूटर का सोल हो गया. मतलब इसके अंदर ही सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू, एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू को ही बोलते हैं क्या, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. इसी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? क्योंकि सारे कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेशन, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, कंपैरिजन वाले टाइप्स के सारे प्रॉब्लम्स कहाँ परफॉर्म होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. इसलिए माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है. ठीक है, तो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेन parts of the computer system. Now we are going to learn some output device. In the previous topics we have learned some important input device. Now we are going to learn output device. So what is output device? Output device are used to display the data that we input into a computer and the result which we get after processing, such as monitor, printer, speaker, headphone, etc. are some common output device of the computer. आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहते हैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है तो यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए वो आउटपुट डिवाइस का यूज़ लेता है. जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन हो गया, जिसके हेल्प के थ्रू कंप्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है या प्रोवाइड कराता है. तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. The first one is monitor. What is monitor? A monitor is an output device that show the text and picture on the screen. The output display on the monitor is called soft copy output. A monitor is called the visual display unit, that is called VDU. There are mainly three types of monitor. The first type is CRT, second type is called LCD, and the third type is called LED. मॉनिटर क्या है? एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है जिसका काम क्या है, आपको टेक्स्ट या पिक्चर डिस्प्ले करना है स्क्रीन में. ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस जो भी इंफॉर्मेशन शो करता है मॉनिटर में उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है. और मॉनिटर को ही हम अदर नेम से जानते हैं, जिसका नाम है वीडियो. वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट. अब मॉनिटर कितने तरह के होते हैं? मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, दूसरा LCD जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा है LED जिसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर. ठीक है, अब हम मॉनिटर को पढ़ने जाएंगे और उसके नेचर के हिसाब से तो दो तरह के क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया कलर मॉनिटर और एक हो गया मोनोक्रोम
मॉनिटर। कलर मॉनिटर मीन्स उसमें सारा चीज़ कलरफुल आपको दिखेगा। मोनोक्रोम मॉनिटर मीन्स उसमें आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। मोनोक्रोम मॉनिटर आज के डे में यूज़ नहीं होता है। आज के डे में एलसीडी और एलईडी मॉनिटर ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वालिटी की डिस्प्ले होती है। दैट्स वाई एलसीडी एंड एलईडी मॉनिटर आर पॉपुलर इन नाउअडेज। ओके, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द यूज ऑफ प्रिंटर। This is an important output device of the computer system. It gives a printed output of the results that you see on the monitor screen. Printed output is also hard copy because unlike monitor, the output can be preserved and sent to any place. प्रिंटर क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम का। यह आपको इन्फॉर्मेशन आपको किस फॉर्म में देता है? प्रिंटेड फॉर्म में देता है, मतलब किसी पेपर में इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर देता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आफ्टर प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। ठीक है, तो प्रिंटर के थ्रू से जो भी इन्फॉर्मेशन निकलता है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी इन्फॉर्मेशन, और जो मॉनिटर के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, दिस आर द टू डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। नाउ प्रिंटर भी बहुत तरह के होते हैं, आप जानेंगे कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड लाइन प्रिंटर, and the third types of printer is called page printer. Now we are going to know what are the characteristic of the various printer. The first types of printer is called character printer. As the name suggests, it print character by character at a time. ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है कि वो एक कैरेक्टर पर कैरेक्टर के हिसाब से वो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है, और जब भी ये प्रिंट करता है इसका स्पीड 30 to 60 कैरेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेक्टर प्रिंटर में अगर हम कैलकुलेट करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं। एंड द सेकंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम जानेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक ए टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटर वर्क करता है उसी तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी वर्क करता है। इट क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द पेपर बाय प्रेसिंग द एंड ऑफ द पिन अगेंस्ट द इंक रिबन। जैसे कि टाइपराइटर में क्या होता है, एक तरह का रिबन लगा रहता है, जब भी आप कोई कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो उससे रिलेटेड की आपके रिबन में प्रेस होता है और फॉलोइंग इमेज आपके वर्ड पेपर में प्रिंट होता है। उसी तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपका वर्क परफॉर्म करता है। सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर हो गया लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर हाई स्पीड प्रिंटर that print one line at a times. They are used when large quantity of output is required, as they produce the output quickly. Example of line printer are drum printer and chain printer. The noise level of this printer is high and speed range from 200 to 2000 line per minute. अब जो लाइन प्रिंटर होता है वो हाई क्वालिटी और हाई स्पीड प्रिंटर है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और ये एक लाइन एक ही बार में प्रिंट कर देता है, इसीलिए ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से फास्टर है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी कोई चीज़ प्रिंट करना हो। एग्जाम्पल के तौर पे लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल लिया जाए तो कौन कौन से प्रिंटर आएंगे, ड्रम प्रिंटर आएगा और चेन प्रिंटर आएगा। और जो स्पीड है प्रिंटिंग का लाइन प्रिंटर का वो क्या है, 200 to 2000 लाइन पर मिनट है। थर्ड टाइप्स ऑफ प्रिंटर है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर प्रिंट ए होल पेज एट ए टाइम। एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिंटर आर इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। A page printer require more memory than a character printer or a line printer because it has to store each page in memory before printing it. अब जो पेज प्रिंटर है इसका खासियत क्या है कि ये एक ही बार में पूरा पेज को प्रिंट कर देता है, जबकि आपका कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता था, लाइन प्रिंटर आपका लाइन बाय लाइन प्रिंटर करता था, जबकि पेज प्रिंटर पूरा होल पेज एक ही बार में प्रिंट कर देता है। एग्जाम्पल ऑफ पेज प्रिंटर अगर पूछा जाए तो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग टाइनी इंक ड्रॉपलेट ऑन द पेपर। इट कैन प्रिंट इन बोथ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ दिस प्रिंटर इज better than the dot matrix printer and it prints without making any noise. Its speed is measured in ppm. मतलब इंकजेट प्रिंटर में कैसे प्रिंट होता है, ये स्प्रे करता है इंक ड्रॉपलेट को पेपर में और ये दोनों तरह का इमेज को क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी, कलर भी। और इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा होता है बाकी प्रिंटर के कंपेयर में। और ये जो भी और इसका जो स्पीड होता है प्रिंटिंग का उसको हम मेज़र करते हैं पीपीएम में, जिसका फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर ए लेजर बीम इज़ यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और ग्राफिक ऑन द पेपर। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट एंड प्रिंट द आउटपुट इन वेरी फाइन क्वालिटी।
द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज ऑल्सो मेजर इन ppm। अब जो लेज़र प्रिंटर है इसका क्या टेक्नोलॉजी है प्रिंट करने का, ये लेज़र बीम यूज़ करता है प्रिंट करने के लिए कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक किसी भी पेपर में, और इसका स्पीड है जो प्रिंटिंग करने का बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर, ठीक है। और इसका स्पीड भी हम मेज़र करते हैं ppm में, मतलब पेज पर मिनट के हिसाब से हम इसका क्वालिटी ऑफ स्पीड मेज़र करते हैं। अदर आउटपुट डिवाइस है, जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, स्पीकर। और स्पीकर का क्या यूज़ है हम जानेंगे। वाट आर स्पीकर? स्पीकर आर कैटेगराइज एज आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक साउंड प्लेस बाय कंप्यूटर। नॉर्मली दिस कम इन ए प्ले विद डिफरेंट शेप एंड साइज। स्पीकर जनरली हम आउटपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको हम म्यूज़िक प्ले करने के लिए या साउंड को लिसन करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप का जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्लॉटर we can get the print of photograph, draw image, store in the computer by using a plotter. Plotter is output device which provide high quality of printed output. It's generally used by engineer and architect. प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटिंग डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर आपका बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ इमेज प्रिंट कर सकता है, इसलिए प्लॉटर को जनरली इंजीनियर और आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका काम भी वही है, प्रिंटिंग करना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो क्या क्या तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जनरली कंप्यूटर के अंदर 2 तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द इंटरनल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज MS विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर को कंप्यूटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल के तौर पे आएगा, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरह का जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है अब हम जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के वर्क को परफॉर्म करना है, जैसे MS पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वर्डपैड हो गया। तो जो पर्टिकुलर टाइप के एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं ताकि वो वैसा टास्क कर पाए या कर सके। तो वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के तौर पे MS पेंट, MS वर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे टॉपिक कवर कर दिए इस चैप्टर में, और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। हैव ए नाइस डे, गुड डे स्टूडेंट।